So I have no idea why we're doing this. Neither does she. So basically, my guest is again somebody you already know, but not on this podcast. Maybe we should do introductions, but I think the conversation itself will do it. Both of us are from the world of AEC, let's call it that, but she's an architect who designs big urban spaces and ecosystems, factories, I don't know what not. So there are like so many things within the design realm that she talks about always. But आज मैंने सोचा कि हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, because within her there is this a different type of artist also, which is something that I've always admired about her. And I do think that that side is a much lighter and fun side, because there are few techniques when she writes with. So yeah, it should be fun. By the way, her name is Manu Goyal. Hi, कैसे हो आप? Hello, welcome. Thank you so much. I am perfectly fine. I hope the introduction was fine. Yeah. It was not too expansive and not too timid in terms of what we talk about. आप लिखते हो, right? Every now and then when you get a good thought. But you're not somebody who's like a professional writer. You've not like written with discipline. But you're somebody who was published in your domain of work mainly. But there's another angle of writing that you do that we've shared. And that's poetry. And not just poetry, maybe like some thoughts which are written in a poetic manner, which are quite intriguing to hear and quite fun too. One of my favorite ones, the first one, in fact, that I remember was when you actually went to the Saryu Nadi. Oh yeah. तो वो आपने लिखा था, and you basically आपने अपना experience पूरा. That wasn't the first, but yeah. हाँ, मतलब वो encapsulate किया था अपने experience का. Yeah. और आपने उसको कंपेयर किया था गंगा से, है ना? गंगा सा वेग नहीं था, गंगा सा वेग नहीं था राम तुम्हारी सरयू. तो वो एक तरीके का ना वो it's not just poetic, like it felt like that you've written quite a lot, because वो it didn't come from somebody who's written something like that for the first time. तो थोड़ा सा बताओ अपनी राइटिंग के बारे में, क्या लिखते हो, किस तरीके से लिखते हो, what is your. So Rishabh, it's very interesting that we're talking about it. Yeah. I do feel that हम सभी लोग we wear a lot of hats, right? Yeah, 100%. You also wear the writing hat. Yeah, हमका बोलो. I have like 8 personalities. And I have 16. Yeah. Cheers to that. Yeah. Cheers to that. Yeah. So this is also one of the facets I feel that enriches who we are, who I am. And now that you are talking about it in a structured manner on a podcast, I'm actually just now I'm going back in time and I'm thinking to myself कि मैंने कब लिखना शुरू किया. Right. And I do recall a very, very vivid memory of when I must have written like this for the first time. At least that's what I remember. Okay. ऐसे था. So I think the first time I had written in the same style for a river. और मैं हिंदी में लिखती हूँ actually. तो मैंने एक नदी के पर्सपेक्टिव से लिखा था कि it was probably my own emotions somewhere which I had written about, but I had written in the personification of a river. That, a river is feeling like that it is traveling or whatever the emotions that it is feeling. So मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर अपनी राइटिंग के बारे में बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहें मेरे लिए, तो वो बड़ी आसानी से आ जाता है अगर मैं किसी भी चीज़ को एज अ पर्सन देखूं. राइट. तो अभी हम बात कर रहे थे जैसे कि हम दोनों और ये 2 कैमरा. राइट. हम 4 लोग बात कर रहे हैं. इनकी आंखें हैं, इनके कान हैं. एक्चुअली अगर आप देखने जाए तो है. करेक्ट. और विद दैट इमेजरी सब लगता है कि जब आप वो पेंट करते हैं ना पिक्चर. हाँ, और वो एक थॉट होता है और उस थॉट में जब आप थोड़ा सा अंदर जाने लगते हैं तो फिर चीज़ें निकलती चली आती हैं. उसकी अपनी एक खूबसूरती है.
So basically personification as a tool for writing when you do that. अगर आप मैंने थोड़ा उसको इंग्लिश unpoetic कर दिया। प्रोफेसर हैं तो शायद मैंने इसको लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो मैं शायद थोड़ा आर्ट से दूर करके बता रहा हूँ। सही। maybe. But You also write, right? I don't write. You write. What's your style? I don't know. मेरे को मोमेंट्स में कुछ लगता है, कहीं कुछ दिखता है और मैं बस उसी को स्ट्रेच कर देता हूँ. So, and I have this ability to romanticize life, pretty much. Okay. And I say the ability to romanticize life. I don't see it in my day-to-day life. वैसा नहीं. But जब मैं लिखता हूँ तो I think I have this ability to sort of write about a euphoric situation which is not existing. तो ऐसा कुछ होता नहीं है और काल्पनिक हो जाता है दिमाग में. तो जब मैं कुछ लिखता हूँ तो उसको फिर मैं थोड़ा एनहांस करके लिखता हूँ. शायद उसकी अपेक्षा होती है कहीं मन में या उसकी एक स्ट्राइविंग होती है कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता टाइप्स. So it's most of it is like that. I wrote something about human relationships. तो मैंने उसमें लिखा था कि दो लोग एक दूसरे जैसा प्यार नहीं करते. आपको प्यार की जो परिभाषा आपको समझ में आती है, जैसा आपको लगता है कि कोई आपको प्यार करे, आप भी वैसे ही प्यार करो सामने. बट हाँ, जब मैं लिखता हूँ तो वो मैंने ऐसा लिखा था कि हम सबकी प्यार की डेफिनेशन अलग होती है. And I am kind of a little proud of what I've written there because it sort of is not just a poem, it is basically also telling you about the right philosophy around it, at least. अगर दो लोग ये समझ जाए कि क्यों ना करूँ प्यार में कुछ तेरे तौर का, कुछ क्यों ना करे प्यार तुम कुछ मेरे तौर का, तो उसमें कुछ ऐसा है कि अगर मैं ये समझ जाऊँ कि उसका प्यार करने का तरीका जो है वो कैसा है, तो ये क्लियर है कि उसको भी वैसा ही चाहिए क्योंकि वो ह्यूमन इमोशन एक ही तरीके का होता है. तो अगर फर्ज करिए कि कोई पोजेसिव होकर प्यार करता है तो उसको भी वैसा ही चाहिए होता है. कोई अगर आपको पूरी तरह से केयर करके प्यार करता है कि आप पार्टनर कहीं 10 दिन बाद कहीं से आ रहा है और उसको पता है कि आज ये खाने का मन करेगा तो वो बना दिया जाए, और सिर्फ खाने का मन नहीं, उसके लिए सब चीज़ तैयार हो कि आए वो रेस्ट करेगा या आते ही चाय पिएगा तुम्हें, तो आप वो सारी चीज़ें करके रखते हो पहले से कि आई नो what he or she wants and you do that for that person. So because that other person would have done the same for you. Usually two people in a relationship are not similar people, but it doesn't have to be similar, but it's just the understanding of each other's form of love. So that's how I wrote it. A lot of my writing comes through conversation. I know. So I was going to say that actually. Yeah. I've seen a very interesting thing about him. So he writes conversations. So I call him a conversationalist or a conversationist because he's a podcaster. And मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए conversation is a medium. It could be on camera, off camera, in poetry, whatever. But a dialogue between two. उस आइडिया को भी आपने रोमांटिसाइज किया. मैंने अपनी वो कविता पढ़ी थी जिसमें आप, it was not a कविता really, it was about a conversation, right? And now that you say it, I also feel that maybe you are living all those ideas about life that you think should be with your writing. Could be conversation, could be the idea that you just mentioned. Yeah. Do you think it's like that? I think conversations are a big part of who I am. I mean, it's not something that has just become. कहाँ से start हुआ होगा ये? सोचिए थोड़ा. Baba. I mean, I also went down in my lane of memory. Conversation. So I was never like a very talkative sort of a person. और ज़्यादा था नहीं. I hate talking on the phone. I hate it. Like I can't stand talking on the phone for long hours. You can sit and talk. Now I can. कि बैठ जाएगा तसल्ली से. कोई एक इंसान मुझे अपना समय दे. You the PJ. इनके बैड जोक्स को हम एमजेस कहते हैं मुझे. कोई अपना समय मुझे दे रहा है तो I think that's probably the most valuable thing that somebody is giving to me. That is so true. Money can be made, time can not be made again, right? So उससे ज़्यादा valuable कुछ है नहीं. जब कोई मुझे इसमें टाइम देता है तो मैं भी पूरा समय दे देता हूँ फिर हमको, तो फिर वो बड़ा एक अच्छी सी बैलेंसिंग एक्ट होती है उसके अंदर.
because 2 people, 3 people, 4 people, whatever, जो भी बैठे हैं वो ये तो अब है, बट मुझे जहाँ तक याद है जब हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई और हम बात कर रहे थे उस बारे में, आई रिमेम्बर यू मेंशनिंग दैट मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि लोग बड़े, स्पेशली आज के ज़माने में, लोग दूर रहते हैं एक दूसरे से और एक ह्यूमन कनेक्ट नहीं है. नहीं, so everybody longs for that connection. Everybody longs for that connection. अंदर से ना तो चाहिए कि इम्पोर्टेंस भी चाहिए, तो आपने बनाना नहीं आता लोग. हाँ, तो आपने वो ये कहा था कि आप किसी से भी पूछ लो कि यार एक कप चाय पिलाएगा, तो वो कभी ना नहीं बोलता. वो चीज, why don't you share that? Because I think that's probably like. So what I started doing was that I realized that I have a lot of time on Sundays. Sunday छुट्टी होती है, तो मैंने देखा लोगों के पास भी होता है. Unless until they already have a plan made कि भैया हम तो घूमने जा रहे हैं, दिल्ली के बाहर जाएंगे या शहर के बाहर जाएंगे या फैमिली के साथ. बट जो संडे की सुबह होती है, उस संडे की सुबह सबसे लेजी सुबह होती है. और उस लेजी सुबह में अगर कोई ऐसा मिल जाए आपको जो कुछ अच्छी अच्छी बातें कर जाए ना आपसे, तो बड़ा अच्छा लगता है, स्पेशली टू मैच्योर इंडिविजुअल, यू नो. तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज आई स्टार्टेड कॉलिंग अप पीपल कि आप संडे को क्या अच्छे, वैसे 8 बजे जाऊँगा मैं फिर चाय पीने, चाय पिलाओ, कितने बजे उठते हो आप? And I've seen most serious people in life get up early. Nobody is like कि मैं तो 11 बजे तक सोते उठूंगा यार संडे है मेरा. Unless until they've had a tired Friday, Saturday. Schedule वैसा हो तो एक unless until it's an event they've attended या कुछ वो anomaly है उनके उसमें. But routine में लोग टाइम पे उठते. तो मैं इसी के लिए मैंने आपके लिए एक लाइन लिखी थी कि बताओ. व्यस्त दाम्पत्य जीवन से रविवार की वो सुबह चुरा लेता हूँ. हाँ, exactly. I had picked up that thought. Yeah, and it's a lot of fun. किसी को भी आप प्यार से बोलो ना कि सर चाय पिलाएंगे, या मैं आऊँगा आपके पास, एक चाय पिलाओ, कोई मना नहीं करता. चाय पीता भी नहीं होगा तो बट हाँ, nobody said no. And some people who are not willing to meet you, तो वो पूछेंगे क्यों, क्या हुआ. आपको मैं बिलीव करा रहा हूँ 10 में से 8 लोग नहीं पूछेंगे कि क्यों क्या हुआ. सही बात है. जिनको जो आपको पसंद करते हैं वो ये नहीं पूछेंगे क्यों आ रहा है. वो कुछ सोच लेंगे कि शायद किसी वजह से आ रहा हूँ. जो लोग आपको नाप तोल के जिंदगी में आपके साथ डील करते हैं, वो आपसे पूछेंगे क्या हुआ, सब ठीक है, क्यों आ रहा है. क्योंकि उनके लिए वो वही है कि शायद तुम्हें कुछ चाहिए उनसे, बट कुछ चाहिए नहीं होता. कुछ मिल जाता है आधे घंटे की उस बातचीत में और बहुत मजा आता है. एंड आई नेवर ओवरस्टे माय वेलकम. वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव लर्नड वेरी अर्ली इज दैट आई नो व्हेन टू एग्जिट प्रॉपर्ली. Be it a public meeting, be it an event, be it an exhibition, be it any sort of a professional thing, I don't overstay my. एक कहावत है कि 3 दिन के बाद तो मछली भी स्मेल करती है. Or is it? Yeah, there's a saying like that. Sure. Yeah. So a third day is an overstay. It's not a very good saying though. It's not very. A third day is an overstay for a guest. Right. So I think you should know when to. Yeah. And that is how I also, मैंने एक चीज़ और बिल्ड करी थी अपने बारे में कि कहाँ जाना है. कि मैं कभी भी ज़िंदा बुलाए यूजुअली नहीं जाता कभी भी. बट ये जो संडे की सुबह वाला ये लाड़ है ना, ये कुछ ही लोगों के साथ होता है. तो एक्चुअली जो समझदार आदमी है, जिसको पता है, दे विल अंडरस्टैंड दिस एज समथिंग, एज अ हक, कि ये हक की तरह पूछ रहा है. बिल्कुल है. तो वो आप बिलीव नहीं करेंगे, आप अपने क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं जिसके साथ आप 10 साल से काम कर रहे हैं. अब उनको पूछेंगे सर, या नाम लेके आप बोलेंगे कि यार शर्मा जी मैं सुबह आऊँगा आपके पास, काम कोई नहीं, बस एक चाय पीने होगा. उनके पूछने से पहले आप कह दो मना नहीं कर सकते, करेंगे ही नहीं. और कैसे, मैं यही कहा सर मैं वैसे आपके पास 10 मिनट आपके पास, दैट्स ऑल. इट इज टेलिंग दैट पर्सन दैट यू लाइक हिम, एंड नाउ इट इज फॉर हिम टू चूज और हर टू चूज इफ दे एक्चुअली वांट टू डू दैट अगेन विद मी. एंड इफ यू आर एक्चुअली गुड एट योर कन्वर्सेशन, इफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, वो आपको फिर मिस करेगा. वो कहेगा कि ये तो हो गया एक्चुअली कॉन्वर्सेशन. या बट ये चीज राइटिंग में भी आई. राइटिंग में तो फिर ऑब्जर्वेशन के थ्रू आई. अब एक और चीज होती है, मैं पूरी तरह मानता हूँ कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ अपने अनुभव से सब कुछ नहीं सीख सकते. दैट इज ट्रू. तो आपको दूसरे के अनुभव को स्वीकारना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा. उससे आपकी समझ बढ़ती है. एंड जेन्युइनली इसीलिए हम किताबें पढ़ते हैं, इसीलिए हम न्यूज़ देखते हैं, इसीलिए हम opens up our mind. इसीलिए हम कंज्यूम करते हैं वो नॉलेज जो हमें कंज्यूम करनी है, जस्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर. एंड आई हैव दिस undying thirst for knowledge right now in this phase of my life, where I want to understand a lot of things. दुनियादारी जो होती है, हम बचपन में सुनते थे ना, इनको ये सब याद है. दुनियादारी जो शब्द है ना,
बॉस हिंदी भाषा ने कुछ शब्द ऐसे बनाया ना जो इतने परफेक्ट बने हुए हैं, उनका मीनिंग और महत्व एकदम परफेक्ट है। दुनियादारी, दुकानदारी, लेन देनदारी, वो जो दारी है ना, वो दारी इज द फिलोसफी बिहाइंड दैट। सो दुनिया की फिलोसफी आनी चाहिए करने में, दुनियादारी सीखने को मिलती है। आप किसी से अपना एक पेन भी शेयर कर पाते हो जो आपको सेफ स्पेस दिखती है। अगर आपको ऐसे 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग अपनी लाइफ में मिल जाए ना, फिर थेरेपी की जरूरत नहीं होती अपनी लाइफ में। I swear, I will run psychologists out of their business. Therapy is a whole subject. Oh, we thought about it. I recently heard that episode. The mental health episode. And you wanted to talk about it. You want to do that? Or you want to stay on the writing thing today? I'm happy doing this. सुबह सुबह राइटिंग उतना ही है, और कई बार कुछ राइटिंग का एक बहुत अच्छा हेड क्लोज करते हैं पहले। हाँ, राइटिंग का ना एक बहुत अच्छा नेचर होता है जो मैंने पाया है कि अगर आप कुछ कहना चाहते हो, नहीं कहना चाहते, तो वो एक्सप्रेशन राइटिंग में छुपाया जा सकता है। आप समझ रहे हो? अनकही। तो अगर आपको कुछ एक्सप्रेशन नहीं करना है और अंदर से निकाल देना है अपने, सो इट कैन बी 2 ways। वन इज कि आपने लिख दिया और आप भूल गए, तो आपने वो कैथारसिस कर लिया है उस प्रोसेस का, कि आई वांटेड टू से समथिंग टू समबडी, बी इट अ वेंचफुल थॉट, बी इट एन एंगर, बी इट an expression of love, be it an expression of vulnerability of any kinds। आप उसको लिखिए, और उसके 2 तरीके हैं, या तो आप उसको लिख के भूल जाइए, या आप उसको लिख के सुना दीजिए प्यार से, एक आर्टिस्टिक तौर पर, और मुस्कुरा के, तो आपकी दोनों तरफ की एस्पिरेशन फुल हो जाती है, फिल हो जाती है। एंड राइटिंग हैज़ दिस एबिलिटी ऑफ कीपिंग थिंग्स हिडन टू योरसेल्फ ऑल्सो, एंड आई लव डूइंग दैट, बीइंग क्रिप्टिक, नॉट सेइंग व्हाट आई वांट टू से, बट आई नो व्हाट इट, बड़ा मजा आता है उसमें। You're doing it for yourself. हाँ, और you write for yourself. और sadistic pleasure भी है उसके अंदर, कि शेयर भी कर दिया और उसको समझ में नहीं आया, मुझे तो पता है मैंने क्या कहा है। ऐसे बहुत, मैंने कई ऐसे I'll on this note I'll share a story. प्लीज। तो हम लोग बड़े बदमाश थे कॉलेज में। हॉस्टल में I was the hostel representative as a student, and we had jumped the wall. Okay. Quite a few occasions, but this one time we were all caught. Okay. And we had to write an apology letter. Right. So we wrote very smartly that we are sorry to apologize. And very cryptic में Nice. माफी भी नहीं मांगी और मांग भी ली। So I think it's also play of words what you're talking about. We are sorry to apologize that we did that. We don't even mean it. That was good. Well said. बढ़िया है। Yeah. और वो कॉलेज की तो दीवार टापना जरूरी था। देखो अहमदाबाद में करते क्या हो। बहुत जरूरी। कॉलेज की नहीं थी एक्चुअली, हॉस्टल की थी। So when did you start writing? Back in college, school? Before school. Yeah. That was more like a conversation with yourself, or did you express it out? See, for me, writing is something that is, मैं हमेशा से कहती हूँ ना, मुझे lines आती हैं, like you know. So when I feel something extremely strongly, कोई भी emotion, तो और मैं हिंदी में सोचती हूँ शायद ज़्यादा, तो मुझे वो शब्द मेरे माइंड में एकदम फॉर्म होने लगता है। Yeah. मैंने इस चीज़ पे भी एक अभी लाइन आपको सुनाई हुई थी कि जब मेरे मानस पटल पर कुछ शब्द उभरने लगते हैं, तो फिर उस कलम को ढूंढने लगती हूँ मैं कि आई वॉन्ट टू sort of give a shape to that energy, or release that energy, exactly what you're talking about. And then I write. Yeah. तो मैं ऐसे किसी भी ख्याल को लेके उस पे एक्सप्रेस कर देती हूँ, and that's my way of releasing. And I also write only for myself, so it's not for the world, it's actually not even the unkahi. I think my process is a bit different than yours. When you read something or hear something by someone that you didn't like that much, कि आपने सुना, बहुत intriguing नहीं लगा, how do you criticize that person? What's your way? You mean somebody else's poetry? Yeah, how do you actually tell them that it's not so good, but then you can't do that because somebody's written it in all honesty and with a lot of effort? और होता क्या है, वो लिख के कोई पढ़ाता है या शो करता है ना, तो वो यूजुअली इसलिए कर रहा होता है बिकॉज दे आर सॉर्ट ऑफ प्राउड ऑफ व्हाट दे हैव रिटन। तो वो इमोशन जरूरी है। आई फील राइटिंग तो पर्सनल चीज है। तो आप फिर कैसे रिएक्ट करते हो? किसी का नहीं पसंद आया तो क्या कहते हो? कहते हो यार इससे थोड़ा काम कर। No, it's like, it reminds me of
those art teachers who might, if the child has colored an apple as purple and they're like, ये गलत किया है तूने. No, like that. गलत क्या होता है? गलत Art is art. It's I don't judge. गलत सही कुछ. That's not my thought. A friend of mine who was going through heartbreak back in college. They were so fun. Oh my god, I used to love these Dil Jalas. I used to love these Dil Jalas. बड़ा मजा आता था. In fact, एक और चीज बताता हूँ, उसका heartbreak हमने करवाया था. Oh my god. उसको breakup ही हमने करवाया था because he was in a toxic relationship, and me and my another friend, and we sat down and we actually brainwashed him, and then he said, "Boss, तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, मैं उसको ना नहीं बोलता हूँ बस." And he made us stand there in the room. She entered full with anger, like, you know, and there was just this tutorial room, which was like a separate room. This is way back in school. This was college. No, college, like third year. So This was in Delhi. yeah, my friend was like subjugated to that woman for like 2 years. How is that connected to writing? I'll tell you ना. तो हमने उसका breakup कराया. तो we were in the room and he was talking to her and it was so funny, and she came and she was so angry and then be like, we took her name and I'm not taking any name there. तो हमने उसको समझाना शुरू करा, ये चुप होके बैठ गया. तो हम दोनों ने उसको तसल्ली से करा, वो नाराज हो गई, वो उसको कुछ बोला, उसने एक सेंटेंस के अंदर कहता हाँ, बस इसने हाँ बोला है और हाँ पे ब्रेकअप हो गया, इसके बाद वो चली. अब भाई साहब लिख रहे हैं अगले 6 महीना. But very fickle, I would say. मतलब एक शब्द पे वो 2 साल से दुखी था यार. He wanted to get out of it, but he was also somebody who had formed the habit of that person. वो इंसान टॉक्सिक था और टू द पॉइंट कि वो उसका पूरा दिमाग हिल जाता था. There's a lot of judgment in your. अरे हाँ था, कॉलेज में जजमेंटल होते हैं सब. तो और क्या बुराई क्या है जजमेंटल होने में, कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है. लाइफ हमें कुछ नहीं सिखा रही होती है, हम हमारे में इतनी एम्पैथी नहीं होती है कॉलेज के अंदर. एवरीबडी इज अ यंग पर्सन एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वेज ऑफ द वर्ल्ड. अब वो उसने लिखना शुरू करा अच्छे भाई. अब वो कुछ लिखी इतना और हमें लिखा है. तो हम दोनों, And it was your doing, so you. No, we supported him in what he wanted. So you guys were the inspiration actually behind. No, we supported him in what he wanted. अब वो भाई ये लेके आया, पता नहीं क्या क्या लिख के रहा है, वो सोच रहा है वो शायरी लिख रहा है, और हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार इसको कैसे चल रहा है, इसका तो इसको वापस मैचअप भी करा देते हैं. And we felt like, you know, we could do that because he was still Did there. you know that? No, we didn't get him to catch up with that Oh my toxic God, human being. you've Sorry. been so. No, it was quite horrible for him. He was undergoing a lot of stress and whatnot, and we actually did him a favor. अब इसने ला रहा है कि हमें वो पोएट्री दिखाना शुरू करी. तुम पता है मैं कैसे क्रिटिसाइज करता था उसको. देखा अच्छा है, फिर तेरे को कैसा लगा, और ये तेरा ख्याल पूरा है या इसके अंदर तेरे को और भी कुछ संभालते हैं जो तू लिख नहीं पाया शायद. मैं उसको पूछता था कि तेरे को ऐसा क्यों लगा. अच्छा बट ये तेरे को कब से हुआ, मैंने ब्रोकअप या पहले बीच में भी ऐसे खा तेरे साथ. तो मैं साइको एनालाइज कर देता था उसकी शायरी को, एंड ही यूज्ड टू एक्चुअली टॉक अबाउट इट, एंड आई स्वेयर फिर उसने लिखना बंद कर दिया बिकॉज ही गॉट आउट ऑफ इट. तो उसके साथ उल्टा हुआ, उसकी राइटिंग की मोटिवेशन थी बिकॉज ही वाज सैड अबाउट इट. उसने लिख दिया, अल्टीमेटली वो भी तो अपने किसी वो अपना दुख ही एक्सप्रेस कर रहा था को रिलीज कर. 2 महीने इस थेरेपी पे वो चला मेरे साथ, एंड इवेंचुअली लाइक यार क्या है, पता नहीं क्या लिख रहा था वो. एंड ही वाज, So you know, I want to add something to it. writing Yeah. and जो सुनने वाला है, मुझे ऐसा लगता है to have someone to listen and understand, तो उसमें कम्युनिकेशन वाला एंगल आ गया. तो वो बहुत ज़रूरी है. तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं लकी थी, मुझे कॉलेज में आई हैड अ फ्रेंड who was on the same wavelength, right? So हम लिखते थे, and I do feel that that's why there are poet communes, you know, you'll find कवि सम्मेलन हो रहे हैं, या I think it's a community thing as well, because जितना important है लिखना उतना ही important है समझ पाना. तो आपने बहुत गलत किया अपने दोस्त के साथ, उसका पर्चा लिखने से पहले फाड़ दिया. I'm sorry, he was not a writer. He thought he was. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई पहले का कुछ लिखा हुआ पुराना and you're revisiting it and then you're like, हैं? ये क्या लिखा है मैंने? Yeah, the one time. होता है? हाँ, क्योंकि वो उस समय में तो बड़ा relevant होता है. है ना? But बाद में आके लगता है अच्छा हो ये भी लिखा. Why do you think that happens? It happens with everybody. Because the phase of life changes now, that's why. I don't know. मेरा पहले जब मैं लिखता था तो it used to be a lot more about projection and aspiration than, you know, I want to do this, I want to do that. I used to
Basically, it was just a way of motivating myself into doing something better. Every day, here and there. Goals भी होते थे उसके अंदर, कुछ होता था. But then when I read that like 3, 4, 5 years back, उसके relevance change हो गई ना. Relevance क्या मतलब, मैं क्या बोलूँ आपको कि हमें ये क्या बचकाने notes, ये किस मुझे ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई कि बचकाने नोट्स है. मतलब I was just like okay, I never hit myself with it, but I said शायद clarity नहीं थी पहले. हाँ. I used to keep saying that. शायद पहले clarity नहीं थी. It's just that. But I was it's funny when क्यों जरूरी है लिखना? Oh, for me writing centers me. Very nice. बहुत अच्छे से सेंटर कर देता है. Very nice. अब यार देखिए, ये एक पॉडकास्ट तो चलिए एक बहाना है, बट if I don't have centered thoughts, if I can't take a pause and think and speak, or if I can't genuinely think properly, coherently, Yeah. तो फिर वो कोई फायदा नहीं है सबका. तो राइटिंग से ठहराव आता है और एडिशनल गहराई आती है. पढ़ने से पीस भी मिलती है, आइडियाज भी मिलते हैं, बट यू आर एवरीवेयर कई बार. और मेरे जैसा इंसान जो एक टाइम पे 2 या 3 किताबें भी पढ़ रहा होता है रैंडम टाइम्स पे, कि इसका मन नहीं कर रहा था, हाँ इसका मन होगा तो तो मैं कई बार कई जगह की तरह बेच रहा होता हूँ अपने ख्याल हो. बट लिखने से ना, तो ये तो 2 अलग अलग एक्टिविटीज हैं. जैसे हमारे फील्ड में जब हम इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं तो हम डेली लाइफ से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं ना. तो हम हर इंसान अलग अलग तरीके से करता हुआ. हाँ, बट देन जब हम कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमें उस क्रिएशन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन उस पंडोरास बॉक्स में से निकाल कर लानी होती है. क्या पता कुछ लोग दूसरों की बिल्डिंग्स को देख के इंस्पायर हो रहे. हाँ, मे बी. तो वो रेफरेंस भी तो उनका है ना. उस पंडोरास बॉक्स में एक बॉक्स के अंदर कहीं वो भी पड़ा है रेफरेंस. एब्सोल्युटली. तो मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ. माय सन इज 15 years old. And a few months back, I think there was a teacher, substitution teacher थी शायद, तो उन्होंने एक टास्क दिया बच्चों को कि आपको एक पोएम लिखनी है on a certain topic, whatever. And he wrote something about me. Okay. And उसके पहले उसने पोइट्री कभी नहीं लिखी थी. अरे वाह. And मुझे उसने लिखी वो. I think poetry, what it also gives you is that the beauty of the poetry itself, the fact that you can use the beauty of a language, you can use the, not beauty, I would say, you use the tools available within a language, the words. अभी आपने बात करी, हम एक शब्द की बात कर रहे थे, मृग मरीचिका. हमने अभी आपने मानस पटल, you know, these kind of words. Ul Jalul, yeah. So the words which a language offers to you, they give you an exploration. So it's like a kit of parts, right? आप एक Lego block का एक कुछ बना रहे हैं, and you have interesting blocks. You'll be able to put together something whole new creativity, you know. So he made this 7-8 lines का उसने लिखा, and he was so happy. So he came back and then he read this whole poetry. And eventually, I think we were supposed to take a flight that day. Right. गोवा जा रहे थे हम हॉलीडे के लिए. And he forgot to take जो उसने लिखा हुआ था. And we were on the flight. कोई इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था. And he wanted to read the same thing to his dad. Can you believe what he did? He took out his phone and he recollected his thoughts. And he wrote it again. I think it was like 1-2 words इधर उधर होंगे, but he could recreate pretty much. So what I'm trying to say is that emotional thread that runs through a poetry or an expression, whether it is a written conversation or a poetry or any other medium, that is the essence of it. शब्द बदल सकते हैं, लैंग्वेज बदल सकती है, बट वो थ्रेड जो है ना, वो है एसेंस. दैट इज द ट्रू थिंग. तो आपने भी सरयू वाली पोएट्री की बात करी, तो मेरे लिए वो एक एक्सपीरियंस था कि हम लोग एक बोट पर गए और वो बोट ले जाके उसने बीच में एक जगह पर थोड़ा सा शालो वाटर वाला एरिया था, वहाँ उसने खड़ी कर दी. एंड आई कुड, देयर वाज नो साउंड देयर. पूरे शहर की आवाज़ें सब बंद हैं, सिर्फ हल्का हल्का. मैंने उसमें लिखा है कल कल बहता जल, तो बिकॉज आई कुड sense and experience that. And the moment I'm reading it or I'm rereading it, I'm actually going back into that time and that expression. And for the person reading it, when you've written, you transport it into probably experience that, and then you're hoping that you create your own vision of it. But sometimes the expression is so clear that you can actually picture it. मैं गया था अपनी बेटी के PTM में, हिंदी टीचर से मिला. उन्होंने मुझे
तो इतनी मिठास थी उनकी आवाज़ में, इतने तरीके से एक एक शब्द को प्रोनाउंस कर रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये बच्चा बड़ा अच्छा है, थोड़ा हिंदी से कतरता है, लेकिन अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसको पहले कुछ कविताएं सिखा दी। तो कविताओं से ना उसको हमेशा एक मोटिवेशन मिलती रहेगी लाइफ। उन्होंने शब्द भी यूज़ किया था मोटिवेशन, में कोई मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, प्रेरणा मिलती रहेगी। एग्जैक्टली। तो शी सेड कविताएं याद रहेंगी ना, तो इवन जब चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, जब किसी तरीके की अड़चन आएगी, तो वो कविता बोलेगी ना अपने आप, सबकी हिम्मत मिलती है बच्चे को। मैं बहुत अच्छा ख्याल है। मैंने उनसे पूछा कि किस तरीके की कविता होनी चाहिए, वहाँ पर दिनकर जी की कुछ कविताएं हैं और भी एग्जाम्पल ना मिली। तो मैंने बोला कि इनफैक्ट कृष्ण के ऊपर काफ़ी कविताएं लिखी हुई है, अर्जुन के ऊपर काफ़ी कविताएं लिखी हुई, तो आप वो सब उसको रटवा दो। रट अच्छा लेती है आपकी बेटी। तो मैंने कहा ये ख्याल बड़ा अच्छा है। सो आई स्टार्टेड डूइंग सम ऑफ इट। आई गिव हर सम। क्या पढ़ा आपने? मैंने नहीं पढ़ा, मैंने उसको बोला खुद ढूंढ। पढ़ के सुनाए तो? आपको याद है मैंने आपको एक ऐसे इसी लाइन पे एक कविता थी, यह कदम का पेड़। So imagine like this, and I'm again romanticizing the idea of a mother reading out, because I'm a mother, reading out to her child, let's say my son, and I'm saying यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। मैंने आपको सुनाई थी। And you are actually transported into that time, and you're not only giving a vocab to the child. किसकी कविता है? या तो महादेवी वर्मा या रामधारी सिंह, जहाँ तक मुझे याद है महादेवी वर्मा की। सुंदर है बहुत ही कविता, उसकी लाइन बहुत सुंदर है। आई थिंक आपने कहा था मुझसे। तो आप बच्चे को अगर पढ़ के ये 4 लाइन सुना रहे हैं, एंड तो बच्चा उस जॉय को एक्सपीरियंस कर रहा है, वो रट नहीं रहा है एक्चुअली। बट उस बच्चे की कहानी होता है तो वो एक किताब लेती है, दिन में एक बार निपटा देती है। बहुत अच्छी बात है ना ये। शी इज समबडी हू रीड, बट डज शी रीड हिंदी? वो नहीं, हिंदी से तो सिर्फ कसरती दूर भागती है। तो पहले तो प्यार जगाना होगा ना उस प्यार जगाने के लिए वो एक्सप्रेशन, मैंने उसको ये बोला कि वो जर्मन सीख रही है, तो हमारी हिंदी भाषा कुछ ऐसी है कि अगर आप हिंदी भाषा का सही उच्चारण सीख लें तो आपको बाकी भाषाओं में बोलने में चैलेंज नहीं है। जर्मन इज एनीवेज संस्कृत बेस्ड लैंग्वेज। ओके, सो दैट आई डोंट नो, बट आई एम श्योर। बट जब कोई मैंने फ्रेंच पढ़ी थी स्कूल में, सो इट वाज इजियर फॉर मी टू say those words in a very good flow. So most of the kids I remember, like in मेरे क्लासमेट में, तो कैसे कर लेता है, ये मुझे नहीं था। हिंदी अच्छी थी, हिंदी दोस्त थी, बोलना लिखना। संस्कृत पढ़ी थी और पिटाई कर करके मतलब सिखाया गया था बचपन में, काफ़ी थप्पड़ खाए थे उसके लिए मैंने। और इनफैक्ट मुझे याद है कि एक बार मेरी एक कोई होमवर्क की बुक थी, मम्मा दिखाती देख। सो आई रिमेंबर दैट देयर वाज अ ड्रॉप ऑफ वाटर और समथिंग ऑन इट, एंड लाइक वो रोता था पढ़ते। She showed me that drop of water on that हिंदी वाला book, कि जब तेरे को पढ़ाती थी ना, रो के पढ़ता था नलायक, ये वो तो भी डांटे खा रहा था पहले। So it was that time which was brilliant, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ना लिखना सिखा दिया था सही से। बहुत चंबी मैंने पकड़ी थी वो, एंड आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक वेयर आई शुड हैव, शायद मुझे हिंदी सिखानी चाहिए थी पहले अपनी बेटी को, तो मैंने उसको इंग्लिश में बुक्स पढ़ना शुरू करी, क्योंकि मैं भी वही पढ़ता हूँ। You know, this is one of the most ironic thing about our times, and I think this is going to change very soon. One of the things is that the literature that is available for children, likable literature, right? जिसमें अच्छे graphics हो, fun चीजें हो। हम बड़े हुए हैं, हमने चंपक पढ़ी है, सुमन सौरभ पढ़ी है, नंदन पढ़ी है, मैंने पढ़ी है। उन्होंने नहीं पढ़ी। तो मैंने तो अपने बच्चों के लिए 1 साल के लिए चंपक का सब्सक्रिप्शन भी लगाया। लोड पोर्ट ये तो आप लगाओ ना सब्सक्रिप्शन, गिव देम लिटरेचर। आप चाहते हो सीधा रामधारी सिंह? अरे वो ज्यादातर इंग्लिश में आती है, आप बिलीव नहीं करेंगे, हिंदी में आती है। हिंदी एडिशन स्टिल आर हार्ड टू फाइंड, एंड आई लुक इट अप। It's an online subscription. I know. I've gone to the website and checked everything out. So I actually projected that idea to her. She was disinterested. She will not bring. तो कहती है तो पापा, क्योंकि वो उस लैंग्वेज से रिलेट नहीं करती, बहुत ज़्यादा दूर है, और टू द पॉइंट कि हिंदी के सेंटेंसेस ठीक से नहीं फॉर्म हो रहे उसके भी बोलने में भी। So that is something that I'm a little scared of, because eventually क्या है, बहुत सिखाए तो देश में ही टाइप, और हमें अपनी भाषा तो वही रखनी है। हमारे नहीं होते यार, सुबह शाम हम लोग इंग्लिश ही बोल रहे हैं सबसे जिससे मिल रहे हैं। इन दी आर्ट ऑफ फिटिंग इन, आई डोंट थिंक आई फिट इन एनीवेयर। वो गड़बड़ हो गया थोड़ा लैंग्वेज के साथ। थिंग इज दैट maybe for some parents also English might be their first language, I mean, and which is okay.
I feel that बच्चों ने बाहर जाना है पढ़ने, वो वाला सीन it doesn't matter. I think one should not be so harsh on themselves. But yeah, there is a whole lot of literature out there which is available in certain languages. और उसकी खूबसूरती को समझने के लिए उसी भाषा को थोड़ा सा जानना मुझे तो लग जरूरी रहा हो था जाता है। मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री आ गए जो हिंदी में बोला करेंगे और ट्रांसलेटर सब कुछ समझाएगा दुनिया को, हाँ। वो इंग्लिश सीखना शुरू कर चुके। तो क्या हुआ, वो तो बोलते हैं, Problem हिंदी में वही है। बोलते हैं, मैं नहीं उनको बोलना ही हिंदी में चाहिए मेरे को लगता है कि बोलते तो हैं। अरे ग्लोबल लीडर्स के साथ यार वो हिंदी में बात करें ना यार, इतनी अच्छी भाषा है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, वो बोले हिंदी में, ट्रांसलेटर समझाएगा सबको। चाइनीज प्रेसिडेंट थोड़ी इंग्लिश बोलते हैं, वो तो अपनी भाषा में बोलते हैं। जापानीज लोग बिल्कुल। And I think Germans, Italians, they this don't is choose to speak for the English. first time in my lifetime at least that मैं देख रही हूँ कि हिंदी भाषियों को या रीजनल लैंग्वेजेस बढ़ावा मिल रहा है, जानकारी रखने वालों को एक नीचे निगाह से नहीं देखा नहीं जाता देख है। रहे। मैं यूपी को बिलोंग करती हूँ। हाँ। हमारे यहाँ बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी अंग्रेजी उतनी पॉलिश नहीं होती, या अगर अच्छी आती भी है तो ग्रामेटिकली बहुत अच्छी आती है, बट प्रोनाउंसिएशन वगैरह में मेरा खुद का भी काफी हाथ तंग हो जाता है कई बार। लेकिन एक समय था जब उसको बड़ी नीचे निगाह से देखा जाता था कि हाँ, मतलब यू आर द लेसर मॉर्टल। हिंदी नहीं आती, सॉरी इंग्लिश नहीं आती, या हिंदी बोल रहे हो। I think it's all thanks to social media also. I think it's the times. It's become cool to go and see plays now. Hindi mein. हाँ, It's become cool to go and see a poetry recitation by a single guy, जो बस वहाँ आपको कुछ अच्छा सा सुना रहा है। कितने लोग वायरल जा चुके हैं इंस्टाग्राम पे जिनकी पोएट्री बहुत, विक्राम के बारे में एक पोएम अभी किसी ने सुनाई थी, वो सुपर वायरल हुए। देयर इज दिस बॉय वो खुद ही शायरी लिखता, बड़ी ऑडियंस बैठी है, अरे वाह वाह करती है बैठ के। तो आई थिंक परफॉर्मेंस आर्ट्स स्पेशली इन हिंदी एंड उर्दू वो काफी बढ़ावा उसको मिल रहा है। रेख्ता फाउंडेशन एक ऐसी है जिसकी वो होने वाला है जश्न रेख्ता दिसंबर में। तो इस तरीके की चीजें बहुत सारी हैं। इनफैक्ट आई थिंक जश्न रेख्ता तो मैं जाऊंगा, इट शुड बी फन। Last year I went, so there was Indian Ocean performing there. It was so much fun. क्या भीड़ थी, Like भरा हुआ था यार पूरा। no, when I attended the first Indian Ocean, must have been 1998. Oh, is it? Yeah. Vintage. I'm old. No, those guys are probably like in college and young too, right? Extremely like you older, so same similar होगा। हालांकि I think they're much older now. But yeah, it was quite an experience. And सिर्फ जश्न रेख्ता की बात नहीं थी, they actually created all the things that would invite people over, not just writing. जावेद अख्तर साहब आते हैं, बड़े राइटर्स थे वहाँ। Food and the setup that they had created. बस टूने के कबाब अवेलेबल थे लखनऊ में। Everybody from whatnot regional वो तो go to एक that just to experience है। entice people. No, it's not just about experience. They also wanted people to draw in and make a day out of it. So by the way, Eureka conducts this event called Eureka Bukharu. Yeah. It's happening right now. I know. So Sundar Vaisri mein ho raha So they change venues, Yeah, अभी but Sundar I think for the love of reading, for the love of writing, Yeah, it's good. मुझे ऐसा लगता है ना that love is the key ingredient. कोई फायदा नहीं है आप हजारों बुक्स पढ़ते हैं, आपके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बट आपके पास Love तो love form of होता है reading, ना, love हाँ, तो धीरे धीरे आता है, बट उसका एक टेस्ट, especially for kids, I feel that अगर You know, it's funny how my daughter started reading. उसको स्पेलिंग नहीं पता थी किसी वर्ड की, लेकिन वो वर्ड को देख के एसोसिएट कर लेती थी कि इस वर्ड का मतलब ये है इंग्लिश में। क्योंकि मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया था 1-1.5 साल की उम्र से, पिक्चर बुक से वो व्हाट नॉट, एंड वी यूज्ड टू स्टडी लाइक वी यूज्ड टू रीड। आई थिंक 3 साल की हुई होगी, फिर कुछ बुक्स मैंने उसको देनी शुरू कर दी सिंपल लैंग्वेज वाली, जो खुद ही पढ़ डालती थी। comfortable. और वो रट्टू तोता ऐसा बन गई कि वो उसको वर्ड्स पता थे सारी बुक के, तो she would just like read it. So young kids are like that. And then I would ask her the meaning or the spelling of the word, she would not know. I'm like, okay, she doesn't know. This is funny then. ऐसा नहीं होगा। Very nice. तो मजेदार था, but it was fun. And I swear kids have such retention ability. किस तरीके से वो रिटेन करते हैं अपनी बातों को। और मैं रटने से एक थ्रेड मुझे बताओ तो। याद आ गया। तो एक्चुअली आवर कंट्री इज अ कंट्री ऑफ ओरल ट्रेडिशंस, राइट? एंड हम कहते हैं रटने को थोड़ा सा वो भी अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता ये भी कहते हैं लड़कियां रटती है, लड़के लॉजिकल। आप ये लड़की लड़कों वाली बात में बताओ। स्कूल में ऐसी होता था, लड़कियां रट के लड़कों से ज्यादा मार्क्स लाती थी। बॉस, आई एम सॉरी, दिस वाज ट्रू इन माय टाइम। अभी तुम्हारे टाइम में क्या हुआ है मुझे नहीं पता। ये सिर्फ मसाला डालने। नहीं, सच है। मसाला छोड़ो यार, सच है। मैं कभी नहीं रट सकी, तो आई डोंट नो वेदर दैट होल्ड्स योर लॉजिक और नॉट, बट एनीवेज, तो मेरा पॉइंट ये था
कि हमारा देश जो है वो एक ओरल ट्रेडिशन वाला देश है, एंड जिसमें एक्चुअली लार्ज पार्ट ऑफ द एजुकेशन दैट वाज बीइंग पास्ड बाय द गुरुज टू द शिष्यास वर ओरल, राइट? सो इफ यू सी ऑल ऑफ दीज महाग्रंथ जो हमारे हुए हैं, दे ऑलवेज हैड पोएटिक वर्जन्स ऑफ देम. तो रामायण पढ़ते नहीं है, रामायण कहते हैं, राइट? आपने सुना है रामायण? सुना कभी? अरे सब सारी चीजें तो गीत संगीत के माध्यम से है ना, चौपाइयाँ हैं, छंद है, देयर इज अ होल. बट रामचरितमानस तो पढ़ा जाता है. हाँ, बट आप पढ़ते हो लेकिन उसमें चौपाइयाँ हैं. ओके. हाँ, अच्छा, वो लिखा इस तरीके से है कि उसको कहा जाए. द होल, Oh, it's not like a story. It's like a the whole depth of literature, हमारे वेद, पुराण, they are all built on poetic devices, and the reason for that I firmly believe is that they were supposed to be passed on as oral traditions. Okay. And that's why you'll find कंठस्थ एक शब्द है हमारी भाषा में. Exactly. ठीक है, कि उसको इतने ग्रंथ कंठस्थ हैं, which means that is the retention ability of their mind, that they can actually retain it. It's not ratna. Ratna is like a very cheap copy or cheap word for that. Sure. So let's not downgrade what we have. मेरी 3 साल की बेटी को इंग्लिश की किताबें कंठस्थ हो गए. अब क्या आप उसे क्या दे रहे हैं कंठस्थ करने के लिए, वो आपके हाथ में है. किताबें ही पढ़ रही है, तो मुझे कोई चैलेंज नहीं है. But I've also realized that she has an emotional stability which is better than most kids at her age because she's been reading. उससे फायदा तो होता है. एक पॉइज है उसके अंदर जो मैंने देखा है. she will quietly stand, observe something before jumping onto it. Very nice. उछल कूद नहीं है. ये हो सकता है लड़कियों में वैसे नहीं ना होती हो इतनी. Yet why do you always come down to the लड़का लड़के? Yeah, like girls are like a little more centered. I Do think. not, you know. Why is it like crazy, mavericks, You know, stupid? we are all humans first. I don't think that there is. I'm sorry, I have to say this on camera, okay? I don't think that it is right to put men and women or girls or boys into boxes and say ये ऐसे होते हैं, वो वैसे होते हैं. This is something which should just be done away with. You look at people as humans first, okay? अगर आप ये जजमेंट हटा दोगे ना तो लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी. टॉपिक चेंज कर रही है. मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, मैंने पिछला एपिसोड सुना है आपका. कौन सा पिछला? आई डोंट नो व्हाट. वो हमारे व्यूअर्स अपने आप सुनेंगे जाके. Yeah. Interesting. So this was fun. This was fun talking to you about writing. I'm glad we did not read out anything that we've written to the people because no, I'm not subjecting any of you to that. मैंने तो अच्छा ही लिखा है भाई. और इन्होंने कहा है कि मैं बहुत अच्छा. अब मेरी पोइट्री आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, उसके लिए मुझसे मिलना ही पड़ेगा. Same यार, मैं नहीं कहीं सुना रहा ज़्यादा. But maybe I'll do an episode very soon with some of what I've written. Before you close, मैं अपना एक thought share करना चाहती हूँ. Please करिए. You know, I have been to a college where there was a lot of belief in communities, right? And I do see a lot of schools these days which have clubs and all. मेरी desire है, right? I'm like a working professional. I'm not in the college anymore. We don't have a group or community like that. But मेरा एक ही dream है कि एक हम ऐसा एक छोटा ग्रुप बनाए, छोटा 4-5 लोग, 8-10 लोग, but genuinely interested लोग जो सच में दिल से लिखते हैं, right? कविता लिखते हैं, conversations लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, और पढ़ें हम मिला करें कभी कभी, मे बी एवरी ऑल्टरनेट संडे और वंस इन अ मंथ मिले और पढ़ें. Interesting. एंड तो आई डोंट नो, आई जस्ट थॉट दैट सिंस यू आर ऑन द कैमरा, पता नहीं काट देगा ये शायद. रखूंगा. बट कभी कभी मन में ऐसे ख्याल आता है कि होना चाहिए, इस तो मैं लिखूंगी कुछ. Kind of like a book club, movie club, literary club. Club is like a, And it's like a, I mean, you just call it a club, but like. No, that's not what I'm talking about. You had mentioned last time when I told you, you had mentioned कि जश्न-ए-रेख्ता होता है, आप क्यों ऐसा क्लब बनाना चाहते हो? Sorry, they are events. There are events. I'm talking about a very closed circle, very very closed circle where people are expressing themselves. Where we are not going there to hear some great established authors, right? It is going to be about us and about being understood. So रेख्ता में steps बने हुए, लोग बैठे हैं. हाँ. It's not just about performance. जो वहाँ आए हुए वो भी एक दूसरे को कुछ पढ़ के सुना रहे. और मैंने अभी कल परसों कुछ देखा है कि किसी ने पढ़ के सुनाया कि सरकारी नौकरी लग गई. अच्छा. वो सरकारी नौकरी जो लगी है उससे पहले का पूरा प्रेमिस है क्या रिश्ते आ गए हैं.
अच्छा ये रिश्ते आ कहाँ रहे सुना हैं और कई रिश्ते आ रहे हैं, वो सब इंटरनेट पे। और लास्ट में बोला है सरकारी नौकरी लगी है, and it went so nice. Everybody is jiving, everybody is enjoying that. Wow. सारे बैठे वाह वाह, अरे वाह, मुबारक हो। तो बड़ा अच्छा सा वाइब बना रखी है। It's not just big performers who are coming and people are listening to them. It's not just about a show. It's about people participating and making it like a genuine community which is out there. और कोई भी Yeah. बैठा कहीं भी एकदम से देखता है कुछ लोग बैठे तो सुनेंगे कुछ, सुनाओ, खड़ा होके सुना। People have this confidence in their ability to actually go and test themselves out, and youngsters are doing a quite fantastic job, I think. fantastic Yeah, and job. a few days back, we'd gone to a stand-up comedy show, very nondescript, something in the neighborhood. Me and my friend went. A lot of youngsters were there, very small. I think 40-50 log honge. Yeah. And the boy who was doing the comedy show was for the first time in Delhi, Mumbai se tha wo. Young chap, I think all of about 24-25 years. Brilliant. And nothing it was very apparent that he was picking up threads from daily life. Huh. Right? I'll just tell you. So he said that, ये expression आपने सुना होगा, one of the best. He said, one of the best क्या होता है? He said, या तो best हो, so you want to play safe. Right? So उसने उस thread पे पूरा एक comedy scene कर दिया. And I tell you, even today, I can't use the word one of the best without thinking about what he's actually saying. Very nice, yaar. Deep thinker. बहुत अच्छी चीज़ है. ये that, in today's day and age, everybody is finding that little space for themselves. बहुत अच्छी बात. It's good. And boosts your confidence, gives you a very nice color to your personality. It basically makes you a little more attractive to people. It makes you happier. It's everything. मुझे वैसे भी लगता है ये जो समय है, these times are about your expression. Right. It's not so much about who thinks of you. So आज के ज़माने में हर कोई एब्जॉल्व होना चाहता है, हर कोई एक्सप्रेस करना चाहता है, हर एंड उस तरह के एवेन्यूज हैं, बिकॉज एवरीबडी इज लाइक देयर इज अ डेप्थ इन विच यू एग्जिस्ट, राइट? आपके अंदर एक रिग्मा रोल ऑफ आइडियाज, पोइट्री, रीडिंग, राइटिंग, व्हाटएवर, कॉमेडी, कॉम्प्लिकेशंस, शायद थोड़ा ओवर थिंकिंग, ओवर एक्सपोजर का भी इसमें कोई रोल हो. आई डोंट नो, आई एम नॉट अ सोशल साइंटिस्ट, तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूंगी. बट अच्छी बात है कि लोगों को एवेन्यूज मिल रहे हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, बिकॉज पेंट अप इमोशंस डोंट हेल्प एनीवन. अरे सब चीज़ का ना एक वो रीज़न होता है. वैसे मैं बता दूं आपको, ये मुझे आता दिख रहा था. एंड आई विल टेल यू व्हाई. 2-3 साल की कंफाइनमेंट विद कोविड. Yeah. And all these guys, especially the youngsters who couldn't really experience a good college life, right? Didn't actually make a lot of connections. Everything is an outburst. And then there was a resultant of stand-up comedy doing really well. Stand-up comedy is something that everybody sort of enjoys. So performance arts started becoming a thing. Okay, yaar ye banda khada jokes se to suna raha hai. What if I try poetry? Somebody tried that and they were really good at it. And then that alienation. And then it's the role of social media. Yeah. Very major. It is huge. Social media is dictating pretty much many of our actions every day, day-to-day actions. And that is how the arts are also evolving. And then somebody posts, okay, I'm at Manav Calls next. मैं त्रासदी देखने गया हूँ यहाँ वाले स्टेडियम पे. And it's just like, okay, ऐसा क्या है कि उसके प्ले में? It's a single band's act. तो कुछ अच्छा ही होगा यार, इतने लोग जा रहे हैं. Oh, I couldn't find this tickets to this show. Diljit Dosanjh sold out. Performance arts sold out everywhere. Coldplay sold out within like an hour. So it's just sort of crazy that people, I think it's a beautiful thing that people have also started observing and attending such things. मेरे हिसाब से तो आप कह रहे हैं, मुझे लग रहा था आप ये बोलने वाले. ऑडियंस है. मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के टाइम पे लोगों सब को, चीज का रिजल्टेंट है एक्सप्रेशन की बात जो हो रही है ना, कोविड के टाइम्स में लोगों को द फ्यूटिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस की रियलिटी पता चली. आप तो भूल गए कि अभी याद नहीं है किसी को? नहीं याद है, बहुत अच्छे से याद. आप भूल गए हो? नहीं बोल ना, किसी को याद नहीं होता है, सबको याद है. सो मेरे हिसाब से कोविड ने लोगों को
इस समय में जीने की, प्रेजेंट में जीने की, और फ्यूचर का इंतजार ना करने की एक छोटा सा एक जो लेसन जो दिया है ना, उसका भी रोल है, उसका भी रोल है. Interesting. So I hope you want to close this? Yeah. Yeah. So I hope this was a very light conversation. I'm really pretty seriously about what happened. So yeah, if you have any questions, write to me at thespecificask@gmail.com. You can follow me on Instagram at thespecificask. Message me there and reply to all of your queries or whatever it is. Even if you want, let's just troll us, please leave that in the comments. It'll be fun to actually reply to your funny trolling comments as well. So yeah, I'm Mr. Agrawal. This is Money Goyal. Have a great day.